Hello and welcome back to our channel once again. This is our channel Football Gossips and welcome back here once again. So today we are back here and we are going to talk about another bunch of transfer newses, some rumors. It's gonna be insane. So Mickey, and how this are you is the doing? and this is the last week of transfer market. Yeah, This will be some crazy. insane. So Yeah. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप अगर फुटबॉल कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स भर दें। क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारे हमको मोटिवेशन मिलता है और इससे या हम आगे भी ऐसे इनिशिएटिव लेने की प्रयास या करते रहेंगे। तो बी विथ अस। be with us and also follow us on Twitter, on Instagram and on Facebook, especially on Twitter because if any of news is there, I will provide any and of the मैक्सिमम न्यूज़ेस इन ट्विटर एट फर्स्ट। वीडियो से पहले आपको ट्विटर पे मिल जाएगा हर एक न्यूज़ेस। या तो बिना बकचोदी के जल्दी से शुरू करते हैं और पहली न्यूज़ यहाँ पे आती है पीएसजी से। हम बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि फाबियन रुइज टू पीएसजी फ्रॉम नेपोली। सो यहाँ पे पर्सनल टर्म्स आर ऑलरेडी एग्रीड एंड this is basically PSG and Napoli are talking with them between to they are discussing about the transfer fees and Fabian Ruiz is almost is on the door to joining PSG. So what's your thoughts on this, Mickey? What do you think? आई थिंक दिस इज द ग्रेट साइनिंग। Yeah, मार्को वेराती एंड विटिना के साथ फेबियन रुइज, व्हाट अ मिडफील्ड mm, ट्रियो। दिस विल बी yeah. दिस विल बी ग्रेट। And also Deadwood has already cleared the Leandro या Paredes script and that Andre Herrera उसका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट and होने वाला also है। So and also Giorgio Wijnaldum. yeah, and गाना गुए भी रुक रहा है ना? गाना गुए and हाँ, Danilo Pereira। गाना गुएरो रुकेगा, गाना गुएरो रुकेगा। Danilo और Pereira वो भी रुकेगा। आई थिंक गाना गुए डेब्यूट नहीं है, वो बेंच प्लेयर के लिए का अच्छा है। You know, he's like Scott McTominay, या 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 ऑफ एंड ऑन प्लेयर है वो, चल जाएगा। और हाँ डैनिलो हाँ पेरेरा हाँ भी उसका इंडस्ट्री है, वो रोटेशन या प्लेयर के हिसाब से ठीक है। तो हाँ 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 ज्यादा टाइम नहीं करते और जल्दी से हमने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं जो यहाँ पे निकल के आ रही है। अब हम थोड़ा ला लीगा की तरफ चलेंगे जल्दी से। यहाँ पे ना न्यूज आ रही है एटीएम एथलेटिक से और यहाँ पे बेसिकली एथलेटिक का जो लेफ्ट बैक है रेनान लोडी, we saw him play in the Atletico, but he doesn't seem to be fitted in Diego Simeone's playing style. सिस्टम। So yeah, playing style. So they are trying to offload him or trying to send him on loan, and there is a interest from Nottingham Forest. या They are trying to bring Renan Lodi from Atletico Madrid. या 5 million loan fee for this loan transfer, Hmm. and Option also buy is there. athlete. Yeah, Optional buy is there. Optional buy is yeah, there. yeah. Hmm. Yes, 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 yes. Optional buy is there, Hmm. and here is Atletico Madrid also interest in Sergio Hmm. Reguilon of Basically they Tottenham want Hotspur. basically they want to replace the Yeah, players. yeah, Reguilon is a Spanish player and yeah, he has played Tottenham in that role, that inverted जो wing backs होते हैं जो बाहर नहीं अंदर ज्यादा घुसते हैं। तो उस टाइप का उससे चाहिए क्योंकि Diego already for the Diego Simeone already has the Yannick Carrasco to do that thing, the overlapping things, and he wanted inverted fullback, so he went for Sergio Reguilon from Tottenham Hotspur. yeah. And it I will be think also loaned the by there. yeah, yeah. I think this Yeah, deal is rating is average rating, not so much good, yeah, not so much bad, average. yeah, yeah. Hmm. And अब I आते think हैं, it अब will आते not be there because I think Reguilon is an upgrade on Ronaldo. I know you are a Brazil yeah. fan, but I like Reguilon more than Lodi, for definitely sure. एक्चुअली रेगिलॉन डिएगो सिमियोने के सिस्टम के लिए अच्छा है। रेन लोडी फुली फिट नहीं बैठता हुआ, और अब रेन लोडी ब्राजील के लिए अच्छा है। अच्छा है लेकिन जो रिना लोडी है वो मतलब कुछ ज्यादा ही ऑफेंसिव है, उसके उस पे डिफेंसिव क्वालिटी उतना है नहीं या बेसिकली।
यस, वो तो डिफेंसिव है ना, उसको तो एक ही चीज करना है, पार्क द बस एंड फक ऑफ। या तो वीडियो एंड आल्सो करते हैं। तो एंड यहाँ पे हाँ, अब छोटी सी न्यूज है यहाँ पे। जूल्स कुंडे का जो रजिस्ट्रेशन के बारे में जो टॉक चल रहे थे कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, वो फाइनली ला लीगा ने कंफर्म कर दिया कि बार्सिलोना ने अपना वो स्ट्रक्चर ठीक कर लिया, और अब कुंडे फाइनली ऑफिशियली दिस बार्सा कुंडे इज प्लेयर फाइनली रजिस्टर्ड। now registered in Barcelona, and Barcelona is looking dangerous. And move on करते हैं अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अब या आते हैं रियल मैड्रिड पे। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंसेलोत्ती से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि ऐसे मार्को एसेंसियो के लेके वो कहे कि मार्को एसेंसियो अगर कहा कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं, अगर उसके लिए कुछ अच्छा ऑफर आया तो, और वो क्लब को भी बेनिफिट करा तो। एंड देन And then, basically, it's not that thing. It's basically Carlo is trying to say that if any offer comes for Asensio, which is both interested and both financially helps Real Madrid and also Asensio, and if Asensio accept that offer, he wants to move, then he will go, and Asensio का replacement कोई नहीं आने वाला, because Real Madrid Ancelotti told that we have enough players, so we don't need any another player to buy in our team. And उसके and बाद and also जो थोड़ा Carlo Ancelotti also trust in Dani Ceballos. He think Dani Ceballos make an impact in that team yeah, as a bench player. yes, sir. I think Yeah, this statement is I don't good. think I don't think as a bench player, because Freddy is going to play as right winger. So we have हाँ Cruz, Modric, and we have Kamavinga, Chouamani. So Ceballos, I think वो कुछ छोटे मोटे गेम में स्टार्ट भी करेगा, और या हर एक मैच पे तो उतरेगा ही उतरेगा। आई आई एम मीन्स डेफिनेटली आई मीन वो रोटेशन में चलेगा, बेंच या प्लेयर तो नहीं, ऑन रोटेशन में। रोटेशन। हाँ, ही इज बेसिकली ऑन द रोटेशन। सो अब जरा ला लीगा से हम थोड़ा इंग्लैंड की तरफ आते हैं, और बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। भाई यूनाइटेड अब तक बहुत अच्छे अच्छे डील्स कर रही थी, ये क्या चूतियापक है भाई, व्हाट इज दिस। अचानक से, मतलब ये होता है कि आप सुन रहे हो कि यान सोमर आएगा, या फिर आप उनाई सिमोन के लिए जा सकते हो। भाई मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में इतने अच्छे अच्छे गोलकीपर्स है, लाइक निक पोप इज आल्सो डिसेंट, होसे सा, डिएगो कोस्टा, लाफोंट, माइक मेगनन, मार्टिन दुब्रावका, what the fuck is happening here, man? I don't know. Because there's already personal terms agreed with Martin Dubravka and Manchester United, and he's going to join Manchester United on loan with optional buy, and loan fees will be the 5 million. And but Newcastle wants a permanent move for Dubravka, because they didn't want that a shit goalkeeper in their team. They want to offload him, and United is going to bringing him in the squad to compete with David De Gea. I know he doesn't have any ball playing quality, but De Gea is a far better shotstopper than Dubravka. And Dubravka भी मैंने उसका गेम देखा है, कुछ कुछ गेम मैंने देखा है भाई, उसका भी बॉल प्लेइंग ना, मतलब क्या बोल सकते हैं। डे गेया को अगर मैं 100 में से 10 दूंगा, तो उस बहनचोद को मैं 11 दूंगा कि 12 दूंगा, ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा अपग्रेड लाने का क्या फायदा। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। I think this I think this is a very shit move, very दिस इज poor. यूनाइटेड। I am going to give 100 or 100 out of 100 for Casemiro deal. They're going for Anthony. I appreciate. They're going for Gakpo. I appreciate. They are looking after Frankie De Jong situation. I appreciate. But if you sign Martin Dubravka to compete with David De Gea, I will. I'm going to say one word for you, United and Juan Matau. Fuck off and move Yeah, on to the next news. over. Yeah. अब And next news अब पे आते हैं चेल्सी पे वेस्ट हैम। पहले वेस्ट हैम। वेस्ट हैम क्या हाँ था? हाँ हाँ, छोटों को पहले बच्चों को मौका देते हैं। वेस्ट हैम तो अभी बच्चा है भाई,
20वें पायदान पे बैठा है भोसड़ी के, साढ़े में छाड़ गए उनको, 3 खेले 3 ही चुदा लिया, अपने माँ चुदा लिया। वो डिक्लन राइस 120 मिलियन, सूचेक 150। बोलिन, यू नो, बेसिकली अभी डिक्लन राइस को मैं दोष नहीं देने वाला कोई, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ वर्ल्ड आई क्लास। थिंक आई थिंक ये लीग अभी स्टार्ट ही हुई है। या वेस्ट ham इतना इतना बुरा नहीं खेल सकते, वो टॉप 6 में फिनिश कर जाएगी। पहले 3 मैच खेल के कैसे यूरोपा में क्वालिफाई करना है, वो आर्सेनल ने लास्ट सीजन में दिखा दिया भाई, या ऑलमोस्ट चैंपियंस लीग पहुंच भी गए थे वो। तो यहाँ पे या बहुत सारे वेस्ट हैम ने बहुत ट्राई मारा है, मतलब फिनाकिन पे ट्राई मारा, पता नहीं किस किस पे भैंचोद जाके आ जाओ कर करके उन्होंने सबका दिमाग खराब कर लिया, फाइनली उनको एक प्लेयर मिल गया है, बट दैट इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, या the one of the gem of Tite's Brazil team is Lucas Paqueta, and he is going to join West Ham very soon. He is already landed in England, and West Ham has scheduled medical test on Sunday for him, and he is going to just here we go, मतलब कुछ कभी भी आ सकता है here we go। और ये 5 साल का डील होने वाला है कि मतलब भाई वेस्ट हम कैसा प्राइस टैग लगाता है प्लेयर पे हम सबको पता है। वो मतलब उनसे अगर तुमको प्लेयर खरीदना है तो तुमको अपना गांड लेके जाना पड़ेगा, हाँ हमारा गांड मारो और प्लेयर लेके जाओ, मतलब ऐसा वो टीम टैग लगा देते हैं। मतलब ये एंड समझ लो लुकास पगेटा 5 साल के लिए फंस गया वेस्ट हम पे। एंड दिस डील हैपेंस फॉर 63 मिलियन यूरो। या या अराउंड दैट, बट वो प्राइस से कभी नहीं आया है, वो अभी मतलब पर्सनल टर्म्स अभी एग्रीड हो चुका है वो ओ मार्सेली के साथ, मार्सेई या लियो, लियो या मार्सेली, लुकास पगेटा किस मार टीम से के लिए है? लियो 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 लियो। लियो लियो, सॉरी सॉरी, अरे लियो, दोनों ओलंपिक है ना, इसलिए कंफ्यूज हो हाँ जाते कभी ओलंपिक, कभी। ओलंपिक मार्सेई। सो लियो से मतलब 63 उनसे टॉक्स चल रहे हैं कि कितने में वो, मतलब वो 60 to 70 के अंदर हो जाएगा वो एडॉन्स फैडॉन्स मिला के। हम्म And what do you think about in perspective of Lucas Paqueta and in perspective of West Ham? What do you think? आई थिंक लुकास पगुएता को एक बड़ी मूव चाहिए थी, और आई थिंक Hmm. वेस्ट हैम लियो के जैसे क्लब के लिए तो एक अपग्रेड ही होगी, और वो अपने टैलेंट को ईपीएल में सबके सामने दिखा Hmm. सकेगा, और उस बारसा रियल एंड आल्सो द जायंट्स को वो आकर्षित पाएगी अपनी तरफ। आई Hmm. थिंक आकर्षित, but he's choosing, but my point is he's choosing the wrong club because अगर वो बार्सिलोना रियल मैड्रिड को अट्रैक्ट कर भी लिया, अगर उसने यूनाइटेड को अट्रैक्ट कर लिया, लिवरपूल को भी कर लिया, मतलब कुछ मतलब आएंगे, अगर रियल मैड्रिड खरीदना आता है या फिर बार्सिलोना लिवरपूल चेल्सी कोई भी आता है, भैंचोद ये लोग तो बोलेंगे 100 150 मिलियन दे दो, 170 क्या दे दो, है, और ऊपर से 5 साल का डील है। आई थिंक ये थ्री फोर इतना थ्री तो है, थ्री इयर्स डील 5 साल होनी का डील, चाहिए थी। हाँ थ्री आई थिंक इयर्स डील अगर होता है तो ये लुकास पकेता के लिए अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट हैम ने यहाँ पे गेम खेला है ना, पकेता मेरे लिए फंस गया है भाई, पकेता इज बीन ट्रैप्ड फॉर मी। या हाँ अगर अगर वेस्ट हैम अपने फुल पोटेंशियल पे खेल गए तो तब तो ठीक है, मतलब वेस्ट हैम 5 पे आ गए या फिर 4 पे आ गए या फिर 6 पे भी आ गए तो चलेगा, लेकिन अगर वेस्ट हैम ने अपनी माँ चुदा ली तो पकेता भी छूट जाएगा, इतना फॉर श्योर। अब देखते हैं क्या होता है। अब या आते हैं चेल्सी के न्यूज पे। या तो वेस्ली फोफाना, हमने बहुत बात की इसके बारे में, तो वो उसका जो 70 मिलियन का जो बिड डाला था चेल्सी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, फिर चेल्सी थोड़ा मार्केट में घूम के आए और दूसरे प्लेयर्स के बारे में थोड़ा स्काउटिंग किया, लेकिन वो वापस आए और फोफाना के फिर से 75 मिलियन प्लस हम एड का डील बिड मारा, और लेस्टर ने इस बार कहा कि ठीक है भाई तुम ले जाओ, ये फोफाना भी चूतियापा कर रहा है, इसको खेलना नहीं है लेस्टर के लिए, ये सब चेल्सी चेल्सी कर रहा है, इसको सिर्फ ब्लू जर्सी में सिर्फ लोगो चेंज करवाना है, वो उसको मतलब क्या बोलते हैं, वुल्फ की जगह उसको चेल्सी का क्या क्या होता है चेल्सी का लोगो में, वो शेड है कि कुछ भी है चेल्सी के लोगो में जो भी है, उसको लोगो चेंज करवाना है ब्लू जर्सी के ऊपर, तो जा भाई तू अपना गांड मारा चेल्सी पे जाके। तो यहाँ पे डील कंफर्म होते हुए दिख रही है, 75 मिलियन प्लस सम एड ऑन्स इज देयर, एंड वेस्ली फोफाना हियर वी गो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है वो अभी तैयार हो रहे हैं, और फोफाना बस आएगा साइन करेगा जर्सी पहनेगा, सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देगा और अगले मैच से खेलने उतर जाएगा।
और बूम। टुकेल को अभी फाइन फाइन देना है, वो बेंचोद आज मैच में वो फैन बन के बैठा था, फैन बन के देख रहा था वो। अरे ये चेल्सी के चल क्या रहा है बे? पिछले मैच पे कुलीबाली, आज कॉर्नर गैलेगर, रेड कार्ड का बेंचोद। ये तो चेल्सी अकेले लगता है हमारे रामोस रामू काका का वो रिकॉर्ड रैमो तोड़ देगा। रैमोस से इंस्पिरेशन ले रहा है। रामोस का इंस्पिरेशन है भाई। भाई टैकल देखा था कॉर्नर गैलेगर का? लगता है जैसे उसका आत्मा खींच गया भी अंदर से। हाँ हाँ। क्या? छोड़ो वो सब बकचोदे। और भाई लिवरपूल, लिवरपूल इज रॉकिंग। यॉर्गन क्लॉप लिवरपूल। इज यॉर्गन क्लॉप इज बैक। क्लब क्लब को नाइन गुस्सा आ गया। नाइन क्लब नाइन नाइन क्लब नील पे गुस्सा। क्लब यॉर्गन क्लॉप हंस रहा था भाई। यॉर्गन आई जब मीन गोल, जब लास्ट वाला गोल पड़ा, नौवा वाला, मैं मैच देख रहा था भाई। लास्ट वाला जब गोल पड़ा भाई, क्लॉप हंस रहा था वहां पे बैठ के। आई He मीन was smiling. यूनाइटेड से हारने के बाद उसको गुस्सा आया। अब सामने जो भी टीम आए उसका माँ चोद दो, कह रहे। वैन डाइक ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया। और उधर हैंडो ने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। मिलनर जितना भी खेला बहुत बढ़िया खेला। ट्रेंट तो भाई आज आग चला रहा था पिच पे। ट्रेंट एंड एंड डोंट रॉबर्टसन भाई, गुद्दी पकड़ लिया था भाई। मतलब बोनमाउथ को सांस नहीं लेने दिया। एक बार इधर से, एक बार उधर से, इधर से टक इन कर रहा है, उधर से ओवरलैप कर रहा है, उधर मोसाला, इधर लुइस डियाज। बहनचोद, बर्नमाउथ को एंड भाई घर पे, बर्नमाउथ को एंडफील्ड पे बुला के पकड़ के चोट दिया भाई पूरा। एंड डोंट फॉरगेट द अंडररेटेड मैन रॉबर्टो फिर्मिनो। ओ बॉबी मैन, बॉबी वाज इनसेन टुनाइट। ओ भाई भाई भाई, बॉबी ने भी आग लगा दिया। वो बॉबी को जब सब्स्टिट्यूट किया ना वो क्लॉप ने, तो उसको पकड़ के एकदम लगता है कि चुम्मी देने वाला था। चलो, अब अपने फाइनल न्यूज पे बात करते हैं। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले गए थे, टॉपिक पे वापस आते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। रोनाल्डो टू नेपली, जो र्यूमर आया था, उसके बारे में स्पैलेत्ती, मतलब जो नेपली के मैनेजर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको उसका स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। I'd love to work with CR7, of course, but there's no talks. डे डी लॉरेंटिस, जो नेपोली के प्रेसिडेंट है, उसने मतलब स्पैलेत्ती को बोला कि यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है कोई। he doesn't receive anything from United or Ronaldo's side or his agents. He doesn't receive anything. और जो एक और न्यूज था कि ओशिमेन एंड CR7 का स्वैप डील हो सकता है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आई थिंक इट्स डिफिकल्ट बट यू शुड आस्क आवर डायरेक्टर गिवेंथोली। बट फॉर मी, देखो, नेपली में रोनाल्डो फिर भी मैं सोच सकता हूँ, बट ओशिमेन रोनाल्डो स्वैप डील, आई एम ए रोनाल्डो फैन बॉय। बट अगर मैं भी नेपली में होता और मेरे पास विक्टर ओशिमेन है और मैं रोनाल्डो को लेके आ रहा हूँ विक्टर ओशिमेन को दे के, भाई मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होता। मैं बोल रहा इट्स हूँ ट्रू। एज अ रोनाल्डो फैन में बोल रहा हूँ। रोनाल्डो बहुत कुछ उखाड़ सकता है भाई, लेकिन विक्टर ओशिमेन भाई एक यंग प्रोस्पेक्ट है, उसका अभी 21-22 उसका एज है। और वो जो फाड़ रहा है, मैं उसको देके रोनाल्डो को क्यों लाऊंगा? मतलब ये न्यूज वाले भी कुछ भी छापते रहते क्या पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके ये न्यूज फूका था भाई। CR7 ओशिमेन, मतलब कोई चूतिया ही होगा जो ये डील करेगा। एक्चुअली रोनाल्डो 2 से 3 साल तक टॉप लेवल पे दे सकते हैं। पर हम्म। अगर विक्टर भाई ओसिमेन को ओशिमेन का आप अपने फ्यूचर है भाई। विक्टर ओसिमेन को आप अपने साथ रखो तो 10 साल 12 साल भी दे सकता है। और अगर आप उसे बेचना भी चाहो एक अच्छा सा प्रॉफिट हम्म। भी दे जाएगा। पर ऑब्वियसली। रोनाल्डो अब पर रोनाल्डो को बेच के आप इस टाइम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट क्या, कुछ भी नहीं कमा सकते। या और विक्टर ओसिमेन की बात करें तो उसके बारे में ईपीएल के बहुत सारे क्लब्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। मतलब उसको अगर बेचेंगे तो उसका प्राइस टैग मेरे ख्याल कम से कम 100 के ऊपर तो जाएगा ही। वो आप रोनाल्डो के साथ स्वैप करके उसके कुछ अगर यूनाइटेड ने दे भी दिया एक्स्ट्रा, मतलब इस डील का कोई सेंस नहीं बनता भाई। आई डोंट थिंक सो। और या I'd love to watch Ronaldo in Napoli in Champions League, but not with that वॉशमैन वाला थिंग। वो भाई एज अ फुटबॉल फैन मुझे नहीं देखना कि एक क्लब अपनी माँ चुदा रहा है अपनी, ऐसी आई ऐसी आई थिंक ये अगर नॉर्मल डील हुई 15 मिलियन या 20 मिलियन पे विक्टर या ओसिमेन और दैट रोनाल्डो को विक्टर ओसिमेन और रोनाल्डो को साथ में खेलने को देखने मिलेगा तो अच्छा रहेगा।
लेकिन यहाँ ऐसी। पे बेसिकली उसने तो पैलेस्टीन ने तो बोल ही दिया कि यहाँ पे कोई ऑफर फॉफर नहीं है, कुछ हाँ। नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर ओ टाटमन ने भी मीडिया का, वही बोला, कुछ नहीं है। मेरे ये लिए सब भाई मीडिया रोनाल्डो का रुक बकचोदी थी। मेरे लिए यूनाइटेड की रोनाल्डो रुक रहा है। और अगर जाना भी होगा तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ स्पोर्टिंग एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है रियलिस्टिकली जहाँ पे वो जाएगा, क्योंकि स्पोर्टिंग रोनाल्डो को रिजेक्ट तो नहीं करने वाली, इतना क्या? बुरा उनके कान में नहीं है। वो उनके घर का लड़का है भाई। अगर उन्होंने अगर अगर स्पोर्टिंग ने सपोज रोनाल्डो को रिजेक्ट, और अगर ये न्यूज स्पोर्टिंग सिटी में अगर मतलब लिस्बन सिटी में अगर सर्कुलेट हो गया, तो स्पोर्टिंग तो भाई वो मतलब उनके फैन से उनका कान मार देंगे, क्योंकि उनका फैन का सपना ही यही है कि स्पोर्टिंग के जर्सी में रोनाल्डो आके खेले। और तुम रोनाल्डो को रिजेक्ट कर दोगे तो तुम्हारे फैंस के तुमको चुम्मी देंगे, जूते या फेंक के मारेंगे तुमको। तो उनके पास अगर जाएगा तो रोनाल्डो को लेने के तैयार भी है, लेकिन रोनाल्डो को जाना नहीं है। वो बाद में जाना चाहता है। अरे एक्चुअली उसको अभी स्पोर्टिंग में जाने की जरूरत नहीं, उससे अच्छा यूनाइटेड में रुक जाए। अरे भाई चैंपियंस लीग क्या उखाड़ लेगा स्पोर्टिंग। या रोनाल्डो जाके मुझे लगता भी नहीं है, अगर रोनाल्डो जाता भी है तो मुझे नहीं लगता वो ग्रुप राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करने वाले। दैट्स नॉट गोना हैपन। मुझे आया, मुझे भी लगता है वो यूनाइटेड पे ही रुकेगा। और हाँ, क्योंकि ट्रांसफर विंडो के लास्ट टाइम पे अभी रोनाल्डो के जैसे प्लेयर का ट्रांसफर आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा। ना, नेवर नेवर, इट्स नॉट एंड गोना हैपन। यूनाइटेड को रोनाल्डो का कोई बैकअप भी नहीं मिला अभी तक। या ओ बैकअप के बारे में एक छोटा सा न्यूज मैं आपको दे देता हूँ। वो जो चूतिया है ना, ये इसके टीम में जो चूतिया है, जो पिछले साल हग रहा था, फील्ड पे उतर रहा था, इतना इतना हग रहा था, मेम्फिस डीपे, जो पहले यूनाइटेड में ऑलरेडी हक चुका है, हक के गया है एक सीजन, उसको लेने के बारे में यूनाइटेड सोच रही है। अगर रोनाल्डो जाता है, मतलब ये डील कुछ ऐसे हो सकती है, मतलब कंसिडर करिए भाई यूनाइटेड कि अगर रोनाल्डो मानो चला गया और ट्रांसफर न्यूज मार्केट में बस कुछ ही घंटे बाकी है, मतलब जो इन्होंने ओबामा के साथ किया था ना, मतलब लास्ट आवर में जाके ए आजा भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, तू परमानेंट हो जा, लोन नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके लेके आ गए थे बस उठा के। वो वाला चीज ये यूनाइटेड सोच दिमाग में रख रही है, अगर रोनाल्डो जाएंगे तो हम लास्ट आवर में जाके मेम्फिस डिपे को ऐसे उठाएंगे, ऐसे डाल देंगे। और मुझे लगता है वो यहाँ पे आके फिर हगेगा, क्योंकि यूनाइटेड में आई पहले हक चुका है। थिंक आई थिंक तुम्हारे लिए मेम्फिस डिपे चुतिया हो गए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मेम्फिस अच्छा। डिपे वो स्ट्राइकर नहीं है, लिटिल स्ट्राइकर नहीं है, पर वो एक अच्छा इनसाइड फॉरवर्ड है। और आई थिंक वो अपने आप को साइन कर सकता है। इस सीजन वो प्री सीजन आई में डोंट थिंक दिखाया सो। है, और जो दोनों मैच हुए इसमें भी दिखाया है। मेम्फिस डिपे आई थिंक अगर उसको अपना अपना खुद का रोल दिया जाए तो वो अपने आप को साइन कर सकते हैं। और मुझे पर लगता है ये उसको रोल की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है एक फार्मर्स लीग की, लीगा, नो बुंदेसलीगा। नो 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 आई थिंक आई आई भाई वही डोंट किया थिंक है सो। उसने करियर पे क्या किया है तुम ही बताओ। उसने शाइन कहाँ पे किया? वो बहुत सारे क्लब में किया, खेला बहुत सारे क्लब में, खेला, शाइन कहाँ पे किया? तुम बताओ। तुम मेम्फिस डिपे का चाट रहे थे ना, उसके टट्टे चाट हाँ, रहे थे ना, तुम बताओ कहाँ पे शाइन किया? बताओ कहाँ पे शाइन किया? इस सीजन प्री सीजन देखा? इस सीजन कहाँ प्री पे साइन किया? इस सीजन आंसर प्री माय क्वेश्चन, सीजन कहाँ पे साइन किया? मैंने तुमसे ये लीग वन। क्वेश्चन मैंने तुमसे कुछ पूछा यहाँ पे आज का क्या, आजकल प्रीसीजन में क्या किया, मैंने तुमसे पूछा कहाँ पे साइन किया? इतने ऑफ सारे कोर्स क्लब पे खेला, कौन से लीग पे साइन किया? ऑफ कोर्स लीग वन। हाँ। तो 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 ही इज लीग वन पे जाके 26 और ही इज 26 और 20 ही इज 26 और 27 ईयर्स ओल्ड। या यूनाइटेड पे था, बारसा पे पूरा सीजन लगा। उससे पहले कहाँ पे खेलता था? तुम्हारा ये था, तुम्हारे एकेडमी का है ना, उसको तो नहीं नहीं निकाल भी नहीं दिया था। हाँ, बार्सिलोना का एकेडमी का है मैनचेस्टर पे, उसको निकाल आई दिया था, आई बेच दिया डोंट था, नो। बेच दिया था। इसीलिए तो उसका बार्सिलोना के लिए इतना प्यार है। कैटलोनिया ओ एकेडमी का है। या उसी एकेडमी का है, बार्सिलोना ने उसको निकाला, फिर उसको मतलब फ्री में मिला, उठा के लेके आए लीगा में। वो लीगा में अच्छा खेला था। भाई लीगा में है क्या पीएसजी? और लीगा पीएसजी के ली, अलावा है क्या लीगा में? पर मेम्फिस डिपे तो पीएसजी के लिए नहीं अच्छा खेला, वो तो ओलंपिक लिया उस टाइम उतना अच्छा टीम भी नहीं था। जिस ओलंपिक लियो टाइम नहीं था, हाँ। अरे उस टाइम अबे ओलंपिक लियोन, मार्सेई और ये लील, ये तीनों टीम, मतलब वो क्या होता है, मतलब पीएसजी अगर यहाँ पे है तो ये तीनों ये डोंट सेम पोजीशन फॉरगेट पे रहते हैं। डोंट फॉरगेट मोनाको। ना, मोनाको इज मोना फिनिश्ड मैन। मोनाको इज फिनिश्ड। वो आई एम्बापे के डोंट जाने थिंक के सो। बाद से उन्होंने वो कुछ कुछ प्लेयर, मोनाको इज बेसिकली सेलिंग क्लब, उनको हम ट्रॉफी ट्रॉफी काउंट में नहीं रख सकते, इज ए सेलिंग क्लब।
वो प्लेयर वो बनाते हैं तो और फिर बेचते हैं। वो तो लीग वन के पीएसजी के अलावा हर हर क्लब से निकला भी है। हम्म। यू नो, लीगा में खेल के कुछ किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। दैट्स नॉट अ फकिंग लीग फॉर मी, दैट्स अ बुलशिट हु इज रूल्ड बाय पीएसजी, कतारियन ओनर। एक चूतिया है, भोसड़ी का मादर चोद है, वो बहन चोद है। वो किसका नाम है, नासर अल खलीफी। चूतिया पकड़ते हैं वहां पे बैठ के, पैसा फेंको मुंह पे। तुम्हारे मुंह पे भी पैसा फेंक के गया था, तुम्हारा सुपरस्टार उठा के लेके गया था, वो भी दो दो। तुम्हारा दिल धड़कन चुरा के लेके गया, ऐसे उठाया लेके चला गया, दिल समझ धड़कन रहा दोनों हूँ, लेके गया। समझ रहा हूँ। इस साल बहुत झटका मेरे लगा क्या, है मे, तुम्हें। मे, 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 मेरे को इस क्या साल तुम्हें झटका बहुत लगता है? झटका लगा है। मेरे को क्या झटका लगा है? एमपीटीएम, क्या हो गया? हाँ एमपीटीएम किलियन एम्बापे, भाई, आई किलियन डोंट एम फकिंग केयर मैन, आई डोंट फकिंग केयर, आई डोंट समझ रहा केयर हूँ, अबाउट समझ रहा दैट हूँ, बुलशिट। समझ रहा हूँ। भाई, यू नो, एम्बापे, भाई, मेरे को ऐसा प्लेयर चाहिए ही नहीं अपनी टीम में जो अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है? मुझे को ऐसा तब प्लेयर नहीं चाहिए। यू नो, पर जब भाई पहले नहीं किया था, ठीक है? ये जो हम जब उसको अप्रोच कर रहे थे तब उसने ऐसा चूतियापन नहीं किया था। उसको जो पीएसजी ने बोला मैं आपको एम्बापे एफसी बना दूंगा, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, 200 मिलियन दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, पूरा क्लब आपके नाम पे कर दूंगा, आपको मैनेजर बना दूंगा, आपको फुटबॉल डायरेक्टर भी बना दूंगा, साइनिंग भी आप करोगे, आप सब कुछ करोगे। उसके बाद से उसका दिमाग चुतिया गया है, ठीक है? और मुझे वो इस डील के, ये जो उसने साइन किया ना जो लास्ट टाइम पीएसजी के साथ, इस साइनिंग से पहले अगर वो आता तो वो एक्सेप्टेबल था। अगर वो आता है, और आने भी नहीं वाला, क्योंकि पेरेज ऐसे चूतिए चूतिए प्लेयर्स को साइन नहीं करता है, ठीक है? दिल तो टूटा यू नो है। हु इज आवर प्रेसिडेंट, यू नो हु इज आवर प्रेसिडेंट। तो हमने बहुत सारे प्लेयर्स के टट्टे चाट लिए, बहुत सारे क्लब्स के टट्टे चाट लिए। अब इस वीडियो को एंड करते हैं दिल दुख रहा और है, मिलता दिल है। दुख रहा है, ठीक है ठीक है, दिल दुख रहा है। किस चीज के थोड़ा लिए थोड़ा भाई? दुख रहा है। हमारा तो किस चीज के लिए? 2017 में, किस चीज के लिए? हमारा तो किस चीज के लिए दुख रहा है? किस चीज के लिए दुख हमारा रहा है? तो तू बोल किसके रहा है? ओ ये ओ वो टीनेज म्यूटेंट के लिए, वो निंजा क्या टर्टल। मेरे को नहीं दिख रहा है भाई, उससे बेहतर प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी है, जो पीठ में 20 पहन के घूमता है ना, वो एम्बापे जैसे 10 को पैदा कर सकता है। मतलब तुम जिस नेशनल टीम को सपोर्ट करते हो उसका ही प्लेयर है, फिनिशियस जूनियर नाम है उसका। और उधर रॉड्रिगो भी आ रहा है, ठीक है? और मुझे आई थिंक विनी इज अ फार बेटर प्लेयर देन एम्बापे। या, he can't finish like Mbappe, but he can dribble far better than Mbappe, and he can pick the balls, he can pick the runs better than Mbappe। और और अभी मतलब फिनिशिंग डेवलप हो सकता है, उसका हो रहा है डेवलप, हम डे बाय डे देख रहे हैं। पिछले सीजन का देखो, उससे पहले सीजन का देखो, वो डेवलप कर रहा है अपने फिनिशिंग को ना। ही कैन बी अ बेटर प्लेयर देन एम्बापे। व्हाट द फक। एंड हमें स्ट्राइकर चाहिए, विक्टर ओसिमन ने उठा लेंगे अगले सीजन पे। और स्ट्राइकर की क्या कमी है? स्ट्राइकर की कमी तो है नहीं। 3 साल बाद जाके हालांड उठा लेंगे सिटी से। सिटी से? हमको, हाँ सिटी से, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम रियल मैड्रिड है, रियल माद्रिद सेजियो ट्रांसफर के आगुero को भी बादशाह ले, हैं हम। रियल माद्रिद सेजियो आगुero को भी सिटी से 2015 में लेने लेके आना चाहती थी, पर हम्म। ला नहीं भाई। या बट सेर्जियो एगुएरो का सिचुएशन अलग था। वो प्लेयर भाई लॉयल है, ठीक है? वो जिस मतलब सिटी को अपने दिल से प्यार करता था, ठीक है? हालांड ऐसा पर नहीं है। हालांड चूतिया है, हालांड हलान चूतिया अगर है। तीन हलान अगर 3 साल रुक गए तो तुमको क्या गारंटी है वो दिल से प्यार नहीं करेगा? और उसका बाप भी वो क्लब में खेला था, और हालांड बचपन क्या से हो सिटी का सकता ही है? फैन रहा था। आई थिंक आई हालांड विल बी personally I doesn't want Haaland, I personally want Victor Osimhen for sure। अगर तुम मेरे से पूछोगे मुझे कौन सा प्लेयर रियल मैड्रिड के जर्सी में देखना है, मतलब बेंजिमा के बाद उस पोजीशन में, तो मुझे विक्टर ओसिमन को देखना है। और अगर मतलब कोई एक डमी स्ट्राइकर नया उठ के आता है, प्लेयर लाइक, प्लेस लाइक बॉबी राफेलियो। फिर्मिनो, रफाएल नहीं, वो लंडिया है, ओ, वो बल्की है बहुत, वो नहीं चलेगा। who plays like Bobby Firmino, who plays like Karim Benzema, who can provide goals to Rodrigo and Benzema. I want that kind of player.
Osimhen is not that kind, but Osimhen is a pure goal scorer and Rodrigo and Vinicius can provide him. So Osimhen आया तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई नया ऐसा प्लेयर उठ के आता है जो खेलता है, वो मुलर का प्रोफाइल वाला, डिबाला का प्रोफाइल वाला, बेंजिमा, बॉबी फिर्मिनो, ऐसे टाइप का अगर मुझे कोई प्लेयर मिले तो मैं उसको प्रेफर करूंगा ज्यादा रियल मैड्रिड पर हमारा तो फ्रंट लाइन सॉर्ट आउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवेंडोस्की के में। लास्ट सीजन में एक स्ट्राइकर लेके आना पड़ेगा, और स्ट्राइकर बाकी सब अबे लेवेंडोस्की के लास्ट भोसड़ी के सीजन पे। अबे भोसड़ी के तुम्हारे क्लब में इतना अच्छा बच्चा स्ट्राइकर पड़ा है, तुमको स्ट्राइकर की क्या जरूरत? बट ठीक है, उसको तुम स्ट्राइकर लेके आओ, फाती हमको दे दो, फाती दे दो, स्ट्राइकर लेके किसी को कौन से भी स्ट्राइकर लेके आओ, फाती दे दो फाती। फाती को तो तुमको फाती नहीं चाहिए ना? फाती लेफ्ट विंग के फाती फार बेटर लेफ्ट है। विंगर, फाती फाती लेफ्ट विंग इस पे चीज इस मुझे चीज पे इस चीज पे इस चीज पे तुमसे मैं ऑफ कैमरा बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह ऑन कैमरा बात किया तो बहुत कुछ, मतलब ये वीडियो 1 घंटे तक चला जाएगा। तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लगता है स्क्रीनशॉट और वीडियोस के साथ। बाद में तुमको देखता हूँ मैं। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, अभी तक आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, बहनचोद। बकचोदी खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जीवन का आनंद मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमको सजेशन दें हमको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मतलब क्या है, मतलब सजेशन दीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो बोलिए, कुछ बुरा लगा वो भी बोलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।